Hello students, welcome to the English classes for classes 9th. I am Mrs. Sangeeta Saxena and today we will be going on with a further explanation of the third chapter of a main reader, Beehive, that is The Little Girl. In the last turn we did till the part where the girl had Kezia's father had his birthday, so she was planning a surprise for him, and that was a yellow cushion. That was a cushion that she was making out of yellow cotton, and and then she gets punished because she used her father's speech to fill up inside the cushion. Now next, let's continue. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose, go to sleep. Pet. You'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red colored flew into her cheeks. So, when his father punished Kezia, what happens? Hours later, grandmother came to her and then she wrapped her in a shawl. So, because as she was very much scared and she was all into like what has happened to me, so काफ़ी टाइम के बाद उसकी दादी आती हैं and she covers her up into a shawl और उसको rocking chair पे there's a chair उसको वो उस पर बिठा देती हैं और नेक्स्ट व्हाट केजिया स्टिल कीप्स clinging to her body the child clung to her soft body. Now clung means चिपके रहना कि किसी को आपने पकड़ा हुआ है. वो इतनी डरी हुई थी कि वो अपनी दादी को छोड़ नहीं रही थी. नेक्स्ट, what did God make fathers? उसने रोते रोते कहा. सॉफ्ट का मतलब रोना या सिसकना. सिसकना इज द एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन फॉर सॉफ्ट. उसने सिसकते हुए कहा, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? उसने फादर्स बनाए क्यों? Here is a clean hanky, darling. Blow your nose, go to sleep. Pet, you'll forget all about morning. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. तो उसकी दादी कहती हैं टेक दिस क्लीन हैंकी एंड ब्लो योर नोज इन इट कि आप तुम अपनी नाक साफ कर लो इस क्लीन हैंकी में एंड देन गो टू स्लीप. सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी. और तुम्हारे पापा को भी मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रही थी बट ही वॉज टू एंग्री एंड टू टू लिसन. वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और बहुत अपसेट थे इस बात से, इसलिए उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. लेकिन केजिया ने ये बात कभी भूली नहीं. उसके दिमाग में हर टाइम हर समय तक ये बात रही थी. एंड नेक्स्ट टाइम जब उसने अपने पापा को देखा तो दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिए कि कहीं ये फिर से उसको ना मारे. एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स. और उसके गाल डर से लाल हो गए. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them, laughing all the time. Now she is telling that there were McDonald's. उसके कुछ पड़ोसी थे, मैकडोनल्ड्स नाम था उनका. वो नेक्स्ट डोर रहते थे. उनके 5 चिल्ड्रन थे. दे हैड 5 चिल्ड्रन एंड देयर वाज अ गैप इन द फेंस. तो देयर वाज अ गैप इन द फेंस. उनके जो फेंस था, जो घर के अराउंड जो फेंसिंग लगी रहती है, देयर वाज अ गैप इन इट. So what happens? Kezia peeks inside their house through that gap. तो वो उन लोगों को टैग खेलते हुए देखती है. नाउ टैग इज अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर. मतलब हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलते हैं. दैट इज व्हाट इज अ टैग इज. टैग को मतलब हिंदी में पकड़म पकड़ाई कहते हैं. सो दे वर ऑल प्लेइंग टैग टुगेदर. एंड जो माओ था उनका एक बेबी था जिसका नाम माओ था, वो फादर के शोल्डर्स पे था. एंड देवर 2 गर्ल्स दैट वर हैंगिंग टू हिज कोट. उसकी उनकी 2 लड़कियों ने दे क्लंग द फादर्स कोट, दैट इज मिस्टर मैकडोनल्ड्स कोट. And he was going all round and round around the flower beds.
सो नेक्स्ट एंड दे वर ऑल लाफिंग, एंड उसको ये चीज़ भी याद होती है कि वंस व्हाट हैपेंड, द किड्स रैन होज, हिज टू बॉयज रैन होज ऑन हिम, दैट इज दे like they turn the hose on him, and hose is like a water pipe, it's a big water pipe, दैट इज कॉल्ड अ होस पाइप। तो उन लोगों ने अपने पापा के ऊपर वो होस पाइप मतलब छोड़ दिया था ताकि वो गीले हो जाएं, और वो हंसते हंसते ही वॉज ट्राइंग टू कैच हिम, मतलब वो गुस्सा नहीं हुए थे, ही वॉज वेरी कैजुअल अबाउट इट। देन इट शी डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स। तो इन इंसिडेंट्स को देखने के बाद केजिया को लगा कि नहीं, सारे फादर्स डिफरेंट होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. What will I do if I had a nightmare? She asked. I often have nightmares, and then Granny takes me into her bed and I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. Don't you scream and awake your poor pa. So what happens? एक दिन suddenly उसकी मदर की, केजिया की मदर, she becomes ill, and she and grandmother went to the hospital. So what happens that her grandmother and her mother, they both go to the hospital, and then the little girl was left alone with the इन द हाउस विद द हाउस कुक केजिया, वो अपने घर का जो कुक था उसके साथ वो छोड़ दी गई थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, कि सुबह तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब रात हुई एंड व्हेन एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, दैट मीन्स जब एलिस उसको सोने के लिए उसकी बेड में टक कर रही थी, उस टाइम पे केजिया को अचानक से डर लगा। वॉट विल आई डू इफ आई हैड अ नाइट मेयर, अगर मुझे रात में कोई गंदा या बुरा सपना आता है, दैट इज कॉल्ड अ नाइट मेयर, नाइट मेयर इज अ बैड ड्रीम। सो वॉट गोना डू, उसने पूछा, एलिस से ये पूछा। I often had nightmares, and then Granny takes me into her bed and I can't stay in the dark. It all gets whispery. So she says कि whenever I have a nightmare, जब भी मुझे गंदा सपना आता है, then my grandmother takes me to her room and I can sleep with, एंड आई कान स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। वो कहती है कि मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है, बहुत ही विस्परी, मतलब बहुत ही अजीब सी चीज़ें हो जाने लगती हैं, मुझे अजीब सी चीज़ें सुनाई पड़ती हैं, तो मैं रात में अकेले नहीं रह पाती हूँ। यू जस्ट गो टू बेड चाइल्ड, सेड एलिस, पुलिंग ऑफ सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। तो एलिस कहती है कि तुम ना बस सोने चली जाओ, और मतलब तुम बस सोने चली जाओ और चिल्ला करके अपने पापा को मत जगाना तुम। वो एलिस ने सॉक्स उतारते हुए ये कहा उससे कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुम चिल्लाना मत, तुम सिर्फ सो जाओ और अपने पापा को बिल्कुल भी मत जगाना। सो दिस इज स्टिल वेयर वी आर गोइंग टू डू टुडे। now there are two more paragraphs left, so that will be taken care of in the next one, and hope you understood these much. So thank you.